We have so far talked about the oxygen requirements of the microorganisms, and we are familiar with it now that we can estimate and identify the oxygen requirements of the microorganisms by growing them by using the shake tube method. And we have also discussed it that in case of the obligate aerobes microorganisms, they would only show their growth in the upper layers, as well as the obligate anaerobes, they would show their growth in the lower layers. साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि किस तरह से जो माइक्रो एरोफिलिक हैं, they would show their growth in between or in the middle phases. इसके साथ साथ जो फैकल्टेटिव एनारोब्स थे उनके बारे में हमने डिस्कशन की थी कि these are the the microorganisms which can grow in the absence of oxygen, but if the oxygen is present, their growth is promoted, their growth is enhanced. और aerotolerant के बारे में हमने डिस्कशन की थी कि these are the bacteria which are not affected by any by the presence of oxygen, और हमने इसके लिए टर्म यूज की थी कि they are indifferent to the oxygen. So here there is a question that what are the reasons that certain bacteria they have ability to grow in the presence of oxygen, and there are many bacteria which cannot grow in the presence of oxygen. So answer to this question is that there is the presence of enzymatic machinery which enables the bacteria to grow in the presence of oxygen, because you know that oxygen is required for the metabolism, and oxygen may be required as an electron acceptors, and as a result of the metabolism which involves oxygen, there are the chances for the formation of reactive oxygen species. आपने अगर बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है तो बायोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस वन हियर, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। सर आपकी आवाज कम आ रही है। सबको मेरी आवाज कम आ रही है या सिर्फ एक बच्चे को कम आ रही है? सर कभी कम आती है, कभी ठीक हो जी जाती सर, है। कभी कम आती है, कभी वेरिएशन है। आज को थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, तो क्या प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने जो वॉल्यूम्स हैं कंप्यूटर्स के मोबाइल के उनको इन्हांस करके देखें, मेरा ख्याल है कुछ बेहतरी आ जाएगी। इसके साथ मैं यहाँ बात कर रहा हूँ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की, एंड मैंने बताया कि एज अ रिजल्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म व्हिच इन्वॉल्व्स ऑक्सीजन देयर आर चांसेस फॉर द फॉर्मेशन एंड द प्रोडक्शन ऑफ द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। एंड हमने बायोकेमिस्ट्री में जब आपने कहीं पढ़ी होगी तो आपने डिस्कस किया होगा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो हैं इसमें हम ऐड करते हैं, हम कहते हैं सुपर ऑक्साइड्स, मे बी पर ऑक्साइड्स, and even in some cases the nascent oxygen that is also considered as the reactive oxygen species. They are considered reactive and they are considered toxic for the lipid bilayers of the bacteria because they may react with and they may oxidize the lipid content. So that's why they are considered as reactive. These reactive oxygen species, they are considered as toxic. So the organisms which have ability to grow in the presence of oxygen, they have some special or specific enzymes which may detoxify these reactive oxygen species. For example, these two enzymes, they are, the one of them is the superoxide dismutase, and number two, that is the catalase. So highlight superoxide dismutase, and the other one is the catalase. इसमें जब हम बात करते हैं as a result of oxygen metabolism, यहाँ पे this is superoxide. ये superoxide बना, superoxide will react with hydrogen and ultimately hydrogen peroxide and oxygen will be formed. अब superoxide जो था ये बहुत toxic था, reactive species थी, and that combined with the oxygen and that reaction was catalyzed by the superoxide dismutase and it was converted into hydrogen peroxide. Now, hydrogen peroxide is also toxic compound, but this is less toxic as compared to the superoxide. So there is another enzyme which is named as catalase, and this enzyme is responsible to convert this hydrogen peroxide into water and oxygen. तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अल्टीमेट जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है वो है ऑक्सीजन एंड द वाटर मॉलिक्यूल्स वाली. So water molecule and oxygen, they are not toxic for the cell. Ultimately, superoxides and catalases are being converted into water and oxygen by the
activity, by the activity of two enzymes. One is the catalase and number two is the superoxide dismutase. So जो aerobic organisms हैं या जो obligate aerobes हैं, they have the enzymatic machinery, catalase और superoxide dismutase दोनों इनके पास मौजूद हैं. अगर यही हम देखें, the facultative anaerobes which have ability to grow best in the presence of the oxygen, they may have catalase and superoxide dismutase. इनके पास भी दोनों मौजूद हैं, but they also have ability to grow in the absence of oxygen. अब चूंकि हमने डिस्कस किया था कि ये जो है हमारे पास obligate anaerobes, they cannot grow in the presence of oxygen. तो अब हम देखते हैं कि they do not have enzymatic machinery to detoxify the reactive oxygen species. तो इनके अंदर ना तो कैटालेज है ना सुपरऑक्साइड डिस्मूटेज प्रेजेंट है, इस वजह से ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर सकते. आगे थे माइक्रो एरोफिलिक. माइक्रो एरोफिलिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे which require oxygen but in minute quantities. तो इसका मतलब है कि इनमें माइक्रो एरोफिलिक में एंजाइम्स मौजूद तो होंगे लेकिन स्मॉल अमाउंट्स में मौजूद होंगे. और इसके अलावा at the end there is aerotolerant bacteria which are indifferent to oxygen, and we can say that they do not bother either oxygen is present or not. तो इसलिए अगर हम इनकी enzymatic machinery पे फोकस करते हैं, they may have superoxide dismutases only, they do not have the catalases. So this is the detail that what kind of enzymatic machinery is present in certain microorganisms and which enables them to grow in different oxygen conditions, in different conditions which are based on the oxygen availability, you can say that. इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं तो यही बात जो है हम ये टेबल में डिस्कशन है इसकी, and we have also talked about it. So now there are some examples that we are talking about different classes which are classified on the basis of the oxygen requirement for their growth. For example, obligate aerobes की अगर बात करते हैं तो इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास आती है माइक्रोकोकस. So micrococcus are the bacteria which are obligate aerobes and they definitely grow in the presence of the oxygen. इसके साथ साथ obligate anaerobes which do not require the oxygen, and even we can say that which do not grow in the presence of oxygen, they are the bacteroids and Clostridium botulinum. ये दो बड़ी बेस्ट एग्जांपल्स हैं. Clostridium botulinum जो है, this is the bacteria which is the causative agent for a disease which is called botulism. ठीक है, ये food poisoning type disease है. Clostridium botulinum जो है, it used to grow in the diets which are high in the proteins. So this is the best example for the obligate anaerobes. इसके साथ साथ जो facultative anaerobes हैं उसकी best example है E. coli. E. coli is an enteric bacteria that is present in our gut. और चूंकि गट के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंस कम हुआ करती है, so that's why E. coli is the facultative anaerobe. Whenever the oxygen is present, it would grow very well. If the oxygen is not present, it can grow. इसके साथ साथ aerotolerant anaerobes, the common example is the Streptococcus pyogen, and the Streptococcus pyogen is the bacteria which is the causative agent for the sore throat. जो गला खराब होता है उसमें एक रीजन एक टाइप का इन्फेक्शन जो है Streptococcus pyogen भी हो सकता है. और यहाँ पे इंटरेस्टिंगली ये बात याद रखिएगा कि Streptococcus सिर्फ Streptococcus that is naturally present in the throat, और जो Streptococcus pyogen है, this is an infectious agent and this is considered as a pathogen. तो अगर गला खराब हो चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, sometimes it is very difficult to identify that either this is Streptococcus pyogen and Streptococcus. So there are certain tests. आगे इसी चैप्टर में हम उन टेस्ट की बात करेंगे कि हम किस तरह से Streptococcus pyogen और Streptococcus को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इसके साथ साथ आगे अगर हम देखते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें एंजाइम्स की मैंने बात कर दी कि सुपरऑक्साइड डिस्मूटेसेस और कैटालिसिस का क्या रोल हो सकता है. तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स में एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स में हमने सबसे पहले टेम्परेचर पढ़ा है, फिर ऑक्सीजन पढ़ा है. नाउ द थर्ड वन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द पीएच. द पीएच, दिस इज the actually you know that pH is the measure of the hydrogen ion. So prokaryotes or the microorganisms, they require a specific pH for their growth,
that is normally around the neutral pH, which is 5 to 8, but there are a lot of microorganisms which can grow in extreme conditions. For example, they can grow in the presence of acidic environment, in the presence of basic or the alkalinity. तो इस pH requirement के बेस पे भी हम microorganisms को categorize कर सकते हैं different classes में. So there are certain microorganisms which are neutrophiles, which have ability to grow from pH 5 to 8. Acidophiles, which have ability to grow at the pH which is below 5.5 because they are acidophile, they are acid loving. Alkalophiles, which are alkali, alkali loving and which have ability to grow in the conditions which are more alkaline. For example, the pH above 8.5, so they may grow in the pH which is above 8.5. इसके साथ साथ मजीद थोड़ी सी हम बात करते हैं. मेरा सवाल अब यहाँ पे आप लोगों से ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काफी सारे हमने देखे. कुछ ऐसे हैं जो कि न्यूट्रल पीएच पे ग्रो होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि एसिडिक पीएच पे ग्रो होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि अल्कलाइन पीएच में ग्रो होते हैं. सो क्वेश्चन इज दैट किस तरह से पॉसिबल है कि कुछ बैक्टीरिया जो है वो एसिडिक में ग्रो हो रहे हैं, कुछ बैक्टीरिया जो है वो बेसिक में ग्रो हो रहे हैं. सो व्हाट डू यू थिंक what could be the reason and how the alkalophiles यानी कि जो alkaline condition में grow करते हैं, acidophiles, how they are able to grow in the presence of extreme conditions. तो इसका आंसर यहाँ पे हमारे पास ये है कि अगरचे ये जो बैक्टीरिया हैं they are growing in the extreme conditions, in the extreme pH, कोई बहुत low pH पे grow हो रहा है. For example, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो Acidothiobacillus peroxidans है. This is a bacteria which have ability to grow at the 2 pH. There is another bacteria which have been reported a few years ago, that is a Picrophilus oshimi, and that has ability to grow at pH 1. अब ये बहुत कम pH है. इसके साथ साथ एक और alkalophile के example है Bacillus alkalophilus, that has ability to grow at the pH 10.5. This is very alkaline pH. तो अब सवाल ये है कि ये किस तरह से वहां पे ग्रो करते हैं, किस किस्म के मैकेनिज्म्स हैं जो इनेबल करते हैं वहां पे ग्रोथ के लिए. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट देयर आर some mechanisms which are very important. For example, in case of this Acidothiobacillus peroxidans, which have ability to grow at 2 pH, इसके अंदर क्या है, it has ability to oxidize the sulfur compounds. मिसाल के तौर पे ये इतनी लो पीएच जो है, इसका मतलब है कि ये ऐसी जगह पे ग्रो कर सकता है Acidothiobacillus जहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट हो. सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड. इसकी प्रेजेंस में बैक्टीरिया ग्रो करता है. कैसे? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड तो सब कुछ खत्म करके जला के रख देगा. तो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में अगर बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब इट मस्ट हैव सम मैकेनिज्म्स. और यहाँ पे मजे की बात यह है कि जो बैक्टीरिया है ये अपनी विसिनिटी में, अपने इर्द गिर्द, अपनी सराउंडिंग में जो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो सल्फर है उसकी ऑक्सीडेशन करेगा. ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में अल्टीमेटली होगा क्या कि जो एसिडिक एनवायरनमेंट था वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा. तो ये बैक्टीरिया अपने अराउंड और इनसाइड द साइटोप्लाज्म इट वुड क्रिएट अ न्यूट्रल एनवायरनमेंट दैट वुड enable it to grow in the acidic environment. इसी तरह से अगर दूसरे एक मैकेनिज्म के एग्जांपल लें, इन द केस ऑफ alkalophile exchange protons with the sodium ions. It has ability to exchange the protons with the sodium ions. ठीक है, alkalophiles. तो ये क्या करता है कि इसके अंदर, इसकी सेलुलर मेम्ब्रेन के अंदर डिफरेंट टाइप्स के मौजूद हैं प्रोटॉन पंप्स या सोडियम पंप्स, जो कि एक्चुअली में मेम्ब्रेन के अराउंड सोडियम और प्रोटॉन्स की एक्सचेंज करके they are making the inner environment neutral. So that's why the enzymatic machinery of such kind of bacteria can perform their function. So these are two mechanisms which we have discussed, which enables the bacteria to grow in the extreme conditions. Up to this point, if you guys have any question, you can ask.
सर ये लास्ट पॉइंट रिपीट कर दें। कर देता हूँ। इसके अलावा क्वेश्चन की बात हो रही है। क्वेश्चन, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन। जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि जो एरो टॉलरेंट हैं उनके अंदर सिर्फ सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज है, तो इसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन क्या है कि अगर ये ना भी प्रेजेंट होता, क्योंकि ये तो इनडिफरेंट टू ऑक्सीजन है, इन्होंने ऑक्सीजन को यूज ही नहीं करना और ना इससे एनर्जी के लिए ट्रांसफॉर्म करना है। तो सर ये मेरा क्वेश्चन है। और दूसरा सर, जो आपने कहा कि जो जिस तरह से आपने बात की है अल्किलोफाइल्स की कि ये न्यूट्रल कर देते हैं अपने एनवायरनमेंट को, सर पीएच तो इनको चाहिए होती है जिस तरह से कहा है कि अबव 8.5, तो सर फिर न्यूट्रल क्यों करते हैं? मतलब ये इस एनवायरनमेंट में नहीं ग्रो करते जहां पर पीएच जो इनके मुताबिक हो अबव 8.5 हो। ये दोनों क्वेश्चन आपके बिल्कुल वैलिड हैं। एरो टॉलरेंट की जब तक हम बात करते हैं तो एरो टॉलरेंट है बिकॉज़ दे आर, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। डू यू हियर मी? सर बहुत दूर से आ रही है। बहुत कम आ रही है। कम आ रही है, एक मिनट। ओके, अब कुछ आवाज बेहतर हुई है? यस सर। यस। तो मैं ये कह रहा था कि जो पहला क्वेश्चन था आपका कि एरो टॉलरेंट बैक्टीरिया जो है इनके अंदर सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज का क्या फंक्शन हो सकता है। यस, डेफिनेटली दे डू नॉट need oxygen for the metabolism, but definitely if they have to grow in the presence of oxygen, they may have their strike with the superoxides। हो सकता है कि उनके सुपरऑक्साइड से पाला पड़ जाए, और सुपरऑक्साइड्स को डिटॉक्सिफाई करने के लिए दे हैव द स्पेसिफिक एंजाइम इन सम केसेस व्हिच इज कॉल्ड सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज। ठीक है, तो सुपरऑक्साइड जो हैं ये बड़े रेडिली बनते हैं वेयर द ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, कि जिस मीडियम में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वहाँ पे इट माइट पॉसिबल बाय द एक्टिविटी ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म सुपरऑक्साइड्स आर बीइंग फॉर्म्ड। तो इस वजह से इनके पास सुपरऑक्साइड डिटॉक्सिफाई करने के लिए दे हैव सर्टेन एंजाइम्स। जहाँ तक दूसरा सवाल था कि ये हैं तो एक्सट्रीम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बस दे अपने एनवायरनमेंट को न्यूट्रिएट कर लेते हैं। वो क्यों करते हैं? यस, डेफिनेटली दे रिक्वायर एक्सट्रीम कंडीशंस टू ग्रो, लेकिन इसमें कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जो कि हमने डिस्कस की हैं कि they have the enzymatic machinery which works only in the presence of neutral environment, या इतनी एक्सट्रीम कंडीशन पे एंजाइम वैसे भी एक्ट नहीं कर पाएंगे। तो जब इन्हें मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम्स को एक्टिवेट करना है तो उस कंडीशंस के लिए इनको न्यूट्रल एनवायरनमेंट जो है वो जनरेट करना पड़ता है। सो इस जनरेशन के लिए दे हैव नेचुरल मैकेनिज्म्स व्हिच मेक देम एनेबल टू जनरेट द न्यूट्रल एनवायरनमेंट इन द प्रॉक्सिमिटी एज वेल एज इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो वो हमने बात की है कि दो पॉसिबल मैकेनिज्म्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, सर इसमें जिस तरह से एरो टॉलरेंट का अगर देखें तो इसमें सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज प्रेजेंट है, तो सर जब इसका सुपर ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, तो सर इसमें कैटालेस तो प्रेजेंट ही नहीं है। क्या इसमें कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं आएगी, मतलब कि इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक करने के लिए फिर क्या करेगा? एक्चुअली ये इसके अंदर ये प्रोडक्शंस नहीं हो रही, ना इसके अपना सुपर ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहे हैं इसमें, ना इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन को अपने मेटाबॉलिज्म के लिए यूज़ ही नहीं कर रहा। लेकिन स्टिल एडिशनली इसके पास सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज मौजूद है कि अगर कभी सुपर ऑक्साइड से पाला पड़ जाए जो कि ज़्यादा टॉक्सिक हैं तो उनको डिटॉक्सिफाई किया जा सके। ठीक है, ओके सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? Any other questions?
सर मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि जिस तरह से आपने कहा था कि एल्किलोफाइल्स अगर हम इनको देखें एसिडोफाइल्स, तो ये अपना इंटरनल इन्वायरमेंट को तो न्यूट्रल कर रहे होते हैं, तो सर इसकी जो पीएच रेंज बताई है ग्रो करने के लिए, ये इनकी इंटरनल इन्वायरमेंट से तो नहीं ना इसका कोई मतलब रिलेटेड, क्योंकि इंटरनल इन्वायरमेंट में को तो ये न्यूट्रल इनको करना पड़ रहा है अपने ये फंक्शंस पर। यस, इसका इंटरनल एनवायरनमेंट से कोई रिलेशन नहीं है, ये एक्सटर्नल पीएच रिक्वायर्ड है, एनवायरमेंटल पीएच रिक्वायर्ड है, ठीक है, एनवायरमेंटल है, एक्सटर्नल इट इज रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ। चलें, सही हो गया जी। सो वी आर मूविंग नेक्स्ट एंड दिस इज अबाउट या अच्छा, यहाँ पे जो मैं आपको अभी बात कर रहा था इसकी बैसिलस फेरोक्सिडेंस की, कि ये सल्फर कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करता है, सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन होती है और ये पंपिंग आउट होती है हाइड्रोजन आयंस की। और एक्चुअली ये जो सेलुलर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन पंप्स हैं या इसके अंदर सोडियम पंप्स हैं विच आर परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस। और जो पाइक्रोफिलोसोशेमी हमने पढ़ा कि ये आर्के बैक्टीरिया है और ये बहुत लो पीएच पे रिपोर्ट हुआ है, पीएच 1 पे। तो अब अगर इसको पाइक्रोफाइलोसोशेमी को हम अगर हाई पीएच यानी कि थोड़ा कम एसिडिक एनवायरनमेंट पे ग्रो करवाने की कोशिश करें, जैसे कि पीएच 4 है यहाँ वगैरह वगैरह, तो इसकी मेम्ब्रेन अनस्टेबल हो जाती है, यानी कि इसको अपनी मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी के लिए लो पीएच रिक्वायर्ड है। इफ द पीएच वुड नॉट बी suitable or the pH would not be at the conditions which are required, तो ये मेम्ब्रेन जो है ये अनस्टेबल हो जाएगी इसकी। तो इस वजह से हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि बैक्टीरिया जो है इनको किस हद तक अपनी स्ट्रिक्ट कंडीशंस रिक्वायर्ड है ग्रोथ के लिए। अच्छा, आगे अगर हम चलते हैं तो दिस इज द वाटर अवेलेबिलिटी। As we know that water is life and bacteria or the bacteria or any other prokaryote or the eukaryotic cells, they require water for their proper growth. अब you know that in the environments जिनमें 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 water concentration अगर कम हो रही है और then ultimately the solute concentration would be higher if the water concentration is getting lower. एंड इसी रेफरेंस से आपने पढ़ा होगा एफएससी में आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं कि वाटर अवेलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बैक्टीरिया को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक है हेलोटॉलरेंट और दूसरी है हेलोफाइल। हेलोटॉलरेंट आर द बैक्टीरिया विच हैव एबिलिटी to tolerate, यहाँ पे वर्ड्स पे गौर कीजिएगा, हेलो टॉलरेंट आर द बैक्टीरिया विच हैव एबिलिटी टू टॉलरेट हाई कंसंट्रेशंस ऑफ द सॉल्ट, यानी कि दे कैन टॉलरेट। जो हेलोफाइल्स हैं दे रिक्वायर हाई लेवल्स ऑफ सॉल्ट। तो जो हेलो टॉलरेंट हैं दे मे ग्रो इन द लो कंसंट्रेशंस ऑफ द सॉल्ट बट they may tolerate the high concentration of the salt up to 10% NaCl maybe. Or the halophiles, they require high levels of the sodium chloride. They definitely require, they cannot grow without the high concentrations of the salt. अच्छा, अब यहाँ पे ये एक डायग्राम है आप लोगों के सामने, अगर इस पे डिस्कशन करें विद रिस्पेक्ट टू hypertonic and hypertonic solutions के point of view से, you know that if the bacteria they are growing in the environment in which the water content is lower and the salt concentration is higher, तो इस केस में क्या होगा कि water content जो है वो from inside to the outside move करेगा और होगा क्या कि बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म जो है वो श्रिंक कर जाएगा, जिसको हम नाम देंगे प्लाज्मोलिसिस का, प्लाज्मोलिसिस। This plasmolysis can be dangerous in some cases if bacteria is growing without, if bacteria is growing in the conditions in which there is high concentration of salt in the environment. तो plasmolysis के रिजल्ट में bacterial death भी हो सकती है. But if
the salt concentrations are lower in the environment, the water content is higher in the environment, what will happen? The water content will move from outside to the inside of the cell. और यही जो हमारे पास साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, that would deplasmalized, और ये बिल्कुल उसी तरह से फ्लैसेड हो जाएगी ये और फिर यहाँ पे काम आएगा सेलुलर वॉल का. नाउ दिस सेलुलर वॉल विल प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम बस्टिंग आउट. ठीक है, तो ये हम डिस्कशन इसमें कर रहे हैं. अब बहुत सारे बैक्टीरिया, जैसा कि यहाँ पे हमने पढ़ा है हेलो टॉलरेंट और हेलो फाइल. यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हेलो टॉलरेंट जो है फिर ये किस तरह से अपने आप को सक्सेसफुल करते हैं टू ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ द हाई सॉल्ट. तो उसका आंसर ये है कि देयर आर सर्टन इंटरनल सॉल्ट्स. अब यहाँ पे देखें कि अगर इस केस की अगर एग्जांपल लेते हैं तो इस केस में इन्वायरमेंट के अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, जिसकी वजह से सेल का वाटर जो था ये बाहर निकल के इन्वायरमेंट में आ सकता था और सेल जो था वो प्लाज्मोलाइज्ड हो सकता था. अब अगर किसी तरह से यूं किया जाए कि इंटरनल टू द साइटोप्लाज्म, अगर साइटोप्लाज्म के अंदर ही कुछ ऐसे सॉल्ट प्रोड्यूस कर लिए जाएं जिसकी वजह से वाटर कंटेंट जो है या सॉल्ट कंसंट्रेशन जो है वो बराबर हो जाए टू द आउटर एनवायरनमेंट एंड इन द इनर एनवायरनमेंट, तो वाटर कंटेंट जो है वो अंदर से बाहर मूव नहीं करेगा. तो इसीलिए दे आर द बैक्टीरिया विच हैव एबिलिटी टू फॉर्म सम इंटरनल सॉल्ट्स टू इंक्रीज द इंटरनल सॉल्ट कंडीशंस, जिसके रिजल्ट में ये एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट में सॉल्ट कंसंट्रेशन को सिमिलर करता है. और इस सिमिलैरिटी की वजह से बैक्टीरिया आर अनएबल टू so bacterial internal water is unable to extract out. ओके, और इस किस्म के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, इनके एग्जांपल है हमारे पास प्रोलीन. क्लियर? सो दिस वाज अबाउट इट एंड दिस वाज एक्चुअली द एनवायरमेंटल फैक्टर्स व्हिच वर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अच्छा, यहाँ तक इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें. आपके पास बुक है. इफ यू गाइस हैव एनीथिंग टू आस्क तो हम 5 मिनट के बाद डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. मेरे से बात चीज़ें पूछ लें, देन वी वुड मूव टुवर्ड्स द nutritional factors. You have 5 minutes, just go through the book. अगर कुछ पूछने वाला है तो उसको नोट कर लें. 5 मिनट्स के बाद डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. ओके, this is the nutritional factors which are required for the microbial growth. अच्छा, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमने पढ़ा था किसी ज़माने में या पिछले लेक्चर में कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, और इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर हमने टेम्परेचर, ऑक्सीजन, pH, वाटर अवेलेबिलिटी डिस्कस किया. नाउ we are going to talk about the nutritional factors which are required for the bacterial growth. Environmental factors different थे, ये nutritional factors. So when we talk about the nutrients, there are some required elements which are necessarily required for the growth of the microorganisms. For example, the carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड आयरन, जो कि यहाँ पे मैंने इनलिस्ट किए हैं. ठीक है, ऑफ दिस वन. इसमें से कुछ ऐसे हैं which are required in a high concentration, जिनको कुछ को मैक्रो एलिमेंट्स कहेंगे, कुछ को माइक्रो कहेंगे, कुछ को ट्रेस कहेंगे, वगैरह वगैरह. इस पे बात हम करेंगे. अच्छा, इसके साथ साथ हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर यूजेज of the carbon. For example, there are certain microorganisms which are using the organic carbon. ऑर्गेनिक कार्बन के एग्जांपल हमारे पास आएंगे कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड्स वगैरह वगैरह. तो सच काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे वुड बी कंसीडर्ड एज द हेटेरोट्रॉफ्स. And the microorganisms which are unable to use the organic carbon, or you can say that which can use the inorganic carbon, they may be termed as autotrophs. इसके साथ साथ the microorganisms which have ability to consume the inorganic carbon, उनको हम कार्बन फिक्सर भी कहते हैं, यानी कार्बन फिक्सेशन कर रहे हैं इनऑर्गेनिक कार्बन जो कि एनवायरनमेंट के अंदर, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, दिस इज एन इनऑर्गेनिक कार्बन, इसकी फिक्सेशन की जा रही है इनटू द ऑर्गेनिक कार्बन, एंड दिस इज beneficial for animals, for human, because carbon fixation के रिजल्ट में they are acting as a primary producers. उसके साथ साथ हम अगर देखते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं which have ability to fix the atmospheric nitrogen, क्योंकि हमें पता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन 79%
तक प्रेजेंट है. एंड एनिमल्स and lot of plants, they are unable to consume this 79% nitrogen, so they would depend upon microbes. Microorganisms, they have ability to use that atmospheric nitrogen, and they may convert this atmospheric nitrogen into nitrite and nitrates. और ultimately ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के तौर पे नाइट्रोजन फिक्स होगी, यहाँ से फिर आगे प्लांट्स तक या एनिमल्स तक मूव होगी. इसके साथ साथ कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको हम लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स कंसीडर करते हैं. सो दीज लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स आर द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय certain enzymes of the bacteria, and if these nutrients are not present, microorganisms metabolism may affect badly. So that's why they are termed as limiting nutrients, because they are required as a cofactor by certain enzymes, जिसमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल आती है फॉस्फोरस की एंड आयरन की. इसके साथ साथ कुछ और ट्रेस एलिमेंट्स हैं which are required in a very minute quantity, and along with all of these nutrients there are certain growth factors which are required by the microorganism. ये growth factors सारे microorganisms के लिए नहीं require होते. कुछ certain microorganism जैसा कि जो human pathogens हैं उनकी growth के लिए कुछ growth factors required होते हैं. And what are the growth factors? They are the low molecular weight compounds which are required by particular bacterium, not by all bacterium. इन पे हम आगे बात करेंगे इसी चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह. ये एक टेबल है टू शो यू द फंक्शंस ऑफ सम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. अभी हमने पीछे ये लिस्ट देखी भी थी, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अगर हम देखें तो व्हाट इज द फंक्शन इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यू नो दैट this carbon, oxygen, hydrogen that is present as a cellular constituent of the microorganism, and it may be present as a component of amino acids, lipids, nucleic acid, and sugars, etc. इसके साथ साथ नाइट्रोजन क्यों रिक्वायर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, अगर हम ये देखते हैं तो नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अमाइनो एसिड्स एज वेल एज इन द न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लिक एसिड्स में प्रेजेंट होती है. अमाइनो एसिड्स में आपको याद होगा एक अमाइनो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, तो अमाइनो ग्रुप में नाइट्रोजन इज प्रेजेंट. इसके साथ साथ सल्फर is present in certain amino acid. क्या आप किसी ऐसे अमाइनो एसिड का नाम ले सकते हैं जिसमें सल्फर प्रेजेंट हो? एनी वन ऑफ यू? सर सिस्टीन. अच्छा, ठीक हो गया. कोई और? Methionine. जी, Methionine. methionine also contains sulfur. Are you sure about it? यस सर है सल्फर. Yes sir, Okay. होता है इसमें, लेकिन वो अंदर होता है, रिएक्टिव नहीं होता. अच्छा, मुझे ये बताएं कि what is difference between cysteine and cystine? सर सिस्टाइन वो दो सिस्टीन मिलके जब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ना तब सिस्टाइन फॉर्म हो जाता है. Okay, they share common Covalent bond. sulfur. They share Dimer common होता है ये cystine. sulfur bridge बनता है, and they share common sulfur. Okay. So phosphorus that is required and that is present in the nucleic acids, membrane lipids में और ATP में ये present होता है, adenosine triphosphate. पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जो है they are required for the functioning of certain enzymes, और इनके इसके अलावा भी बहुत सारे functions मौजूद हैं, लेकिन अब जो main function है वो ये है कि they are required by certain enzymes. उसके बाद iron is also part of different enzymes. These are the functions. इसके अलावा कुछ बात करते हैं fastidious organisms की. So what are the fastidious organisms? Fastidious organisms are the organisms which require some additional growth parameters to grow. या growth requirements इनकी थोड़ी ज़्यादा हैं. You can say that in very common words. इनके थोड़े grow करने के लिए नखरे ज़्यादा हैं. They require certain extra things to grow. मिसाल के तौर पे Neisseria gonorrhoeae. This is a human pathogen which requires additional 7 vitamins to grow and some 20 amino acids along with the nitrogen, oxygen वगैरह वगैरह. उसके अलावा भी इसकी growth requirements काफ़ी ज़्यादा हैं. तो अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर निजेरिया के लिए हमने कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये सारे एलिमेंट्स प्रोवाइड कर दिए, ये फिर भी ग्रो नहीं करेगा जब तक हम ये रिक्वायर्ड अमाइनो एसिड्स या वाइटामिन्स प्रोवाइड नहीं करेंगे. तो ये फेस्टिडियस ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनको हम अपने पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ज़रा बात ध्यान से सुनिएगा. अब चूँकि मैंने आपको बताया है कि फेस्टिडियस ऑर्गेनिज्म जैसे कि निजेरिया की एक हमने एग्जांपल ली है, दिस वुड नॉट ग्रो
until unless we provide the vitamins. तो इसको हम फूड टेस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फूड टेस्टिंग के लिए, विटामिन मेजरमेंट के लिए। अब मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक फूड है और उसके ऊपर, उसके पैक के ऊपर लिखा हुआ है कि इसके अंदर विटामिन ए प्रेजेंट है, तो उसको चेक करने का तरीका क्या हो सकता है कि हम एक मीडियम बनाएं, ग्रोथ मीडियम, उसके अंदर हम सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दें सिवाय विटामिन ए के, और विटामिन ए ऐड करने की बजाय वो फूड ऐड कर दें जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसके अंदर विटामिन ए है। अगर तो विटामिन ए होगा तो ये बैक्टीरिया जिसको विटामिन ए चाहिए था ग्रोथ के लिए ग्रो कर जाएगा। अगर विटामिन ए नहीं होगा तो दैट बैक्टीरिया वुड बी अनएबल टू ग्रो। So in such a manner we can use this fastidious organisms for the measurement of certain food components. ठीक है, तो this is an additional example for it. इसके साथ साथ हम बैक्टीरिया को न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के बेस पे डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जैसे कि फोटोट्रॉफ्स हैं या कीमोट्रॉफ्स हैं। फोटोट्रॉफ्स जो हैं दे आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, दे रिक्वायर द लाइट सोर्स for the growth, and the chemotrophs they require the oxidizing chemical compounds for the growth। ठीक है, तो इसकी एक यहाँ पे आपको टेबल दिखाता हूँ, दिस इज द टेबल, एंड इस केस में अगर आप देखते हैं द फोटो ऑटोट्रॉफ्स, their energy source is the light and the carbon source is an inorganic carbon। ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, इसका मतलब है कि ये इनऑर्गेनिक कार्बन को फिक्स करेंगे। फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं और एनर्जी सोर्स होगा सनलाइट। अगला है फोटो हीट्रोट्रॉफ्स। फोटो एनर्जी सोर्स तो होगा सनलाइट, हेट्रो इसका मतलब है कि इनऑर्गेनिक कार्बन को यूज नहीं कर सकेंगे, दे वुड बी यूजिंग ऑर्गेनिक कार्बन। उसके बाद है कीमोलिथो ऑटोट्रॉफ्स। कीमो केमिकल एनर्जी यूज करेंगे, ऑटो है इनऑर्गेनिक कार्बन को यूज करेंगे, कीमोलिथोट्रॉफ्स भी इनको कहते हैं और कीमो ऑटोट्रॉफ्स भी इनको कह लेते हैं। ठीक है, और ये एनर्जी सोर्स इनका है इनऑर्गेनिक केमिकल्स जैसे कि हाइड्रोजन, अमोनिया, नाइट्राइट, फेरस एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। कार्बन सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड, इनऑर्गेनिक कार्बन है ना। इसके अलावा कीमो ऑर्गेनो हेटरोट्रॉफ्स। कीमो केमिकल एनर्जी इनका एनर्जी सोर्स है, हेट्रो they would be using organic compounds, sugars, amino acids, etc etc। ठीक है, so this was about it। इसको मजीद आगे हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ते चलेंगे।